Hello and good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us discuss Nifty for the next week, which is starting from Monday, that is as on 22nd of May. But before starting for Monday, let us analyze what happened today. So कल हमने एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी कि अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो क्या करना है, और अगर गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो तो क्या करना है. तो आज हमने गैप अप खुले थे. अगर आप फ्राइडे की ओपनिंग देखो, today's opening was a gap up opening because Thursday's closing was somewhere around 18134, and we had clearly discussed if we open gap up and there is still a negative price action the same way it was going on since the Monday, the way we explained in all the previous videos. If we open a gap up and there is still the same negative price action the way we discussed earlier, then there is a good shorting opportunity as long as lower high again is not broken, and that possibility can go all the way down towards 18,060 to 18,050 and 18k. Now why this points 18,066 and 55 were mentioned? You may remember in previous video too that I had said that key on dates candle frame, these 2 points, first of all this candle, इस candle का लो, ये क्या डेट थी 4th of May Thursday, इसका लो 18,066 और इस कैंडल का लो 18,055. ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक रिवर्सल या फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी आ सकती है. और आप देख सकते हो कि इस कैंडल का जो लो है 10:05 AM 5 मिनट्स फ्रेम पे, इस कैंडल का जो लो है वो 18,066 है. Precisely, sharply, exactly at that point, the one that was mentioned earlier in the previous video. और मैंने मेरे मरीन कंट्रोल फोरम पे भी पोस्ट किया था कि this point is a very good point to book the profits in all the shortings, as there might be a probability of short covering. Also, I have always been discovering, also I have always been discussing that as long as the frames are respected, you can stay in the trade. Like for example, from Monday, that lower lows frame and lower highs frame was going on. Thus, it was supporting shorting. But today you may notice that this frame was broken. We also discussed another important point yesterday, that not a single day openings high was being broken by candle, not a single day. If you see from Monday's 2 or 2:30 PM, 2:20 PM, from the time lower lows and lower highs were being formed, अगर आप तब से चेक करो तो हमेशा कभी भी ओपनिंग हाई प्राइस नहीं टूटी थी from the 5 minutes closing candle. But today if you see कि आज का ओपनिंग क्या था, फ्राइडे के 19th में 9:15 AM, the opening high was 18,176 and the high of this candle is at 18,180. This was crystal clear broken here somewhere, and which clearly shows that there was no point in again thinking of shorting for the day. And also this lower low frame was also broken where there was no possibility of staying in the game. That was the reason early in the morning itself I posted that here it is a good point to book the shorts. So this is the overall summary of what happened today. If we see indices, you may notice that almost all sectorial indices has closed positive except pharma and FMCG. FMCG is barely negative, minus 0.03, but rest all are positive. And the thing that I was mentioning, India VIX, there was no fear, and still today it is -3 close हुआ है at 12.30. So which still shows that most of the sectorial indices were strong, and the strongest of them all was IT today, which helped Nifty actually in pumping so high. Even in the 7 wonders, if you notice, except HDFC, all the rest six, that is IT Twins, TCS, Infosys, ICICI Bank, Kotak, Reliance, everyone closed positive. And that is how it finally took again Nifty back to the 18,200 point. Now coming back to what should happen for next week, the analysis for next week. अभी यहाँ पे एक important बात हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप एक पैटर्न देखो वीकली पे, जैसे मैंने डेज पे एक पैटर्न डिस्कस किया था कि कैसे निफ्टी डेज पे 3 रेड्स बना सकता है. ये पैटर्न हमने कल डिस्कस किया था जब मैंने बताया था कि अगर एक बड़ी रैली आएगी तो 3 रेड्स आएंगे, वापस एक बड़ी रैली आएगी तो एक 3 रेड्स आएंगे. और वैसे एग्जैक्टली कल के फ्रेम में आपको दिखा, वैसे वीकली फ्रेम में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. जब एक रेड हुई थी 17 अप्रैल को, उसके बाद 24 अप्रैल को एक ग्रीन कैंडल आई, वापस 2 मई को एक रेड आई, वापस 8 मई को एक ग्रीन आई, वापस अभी 15th मई को एक रेड कैंडल है. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर ग्रीन कैंडल हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट वीक. Once again, listen to the word carefully that I am saying. There is a probability of next green candle happening. Now, when can this probability be sure of next green candle happening for the upcoming week?
तो आप देख सकते हो जहां से मैंने ये अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की थी, लेट मी जस्ट इरेज दिस रेड लाइन, ओके। सो जहां से मैंने ये अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की थी, दिस गोज ऑन सिंस 27th ऑफ मार्च। आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल है 20th मार्च की, इसका क्लोजिंग क्या है, इसका क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 16945 है, ओके। क्लोजिंग 945 पे है और इसका जो लो है वो 828 है। और आप नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल की ओपनिंग देख सकते हो, द ओपनिंग हैज बीन हायर फ्रॉम द क्लोजिंग। ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल इज 16984। यहाँ पे क्लोजिंग क्या है वापस एक बार 945 और ओपनिंग क्या है 984। नॉट अ बिग गैप अप ओपनिंग बट स्टिल 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स समवेयर above the opening, above the closing, right? तो यहाँ से ऊपर खुला और वापस ये जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो अप्रोच नहीं किया इस कैंडल ने, और यहाँ से उसने एक अच्छी खासी रैली दी अपवर्ड चैनल के पास, अच्छी खासी रैली दी। दिस कैंडल हैज बीन अ वेरी गुड बुलिश ग्रीन ट्रेंडिंग कैंडल। सिमिलरली जब यहाँ पे एक रेड क्लोजिंग आपको दिखी, यहाँ के रेड कैंडल की क्लोजिंग क्या है 17624, वापस the opening of this green candle where it is at 17707, वापस ओपनिंग ग्रीन कैंडल की रेड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है। और इतना ही नहीं तो फिर अगर आप ये भी ट्रैक करो कि इसका लो कहां पे है, इसका लो है 17612। उसी तरह से प्रीवियस कैंडल का जो लो है 17553, यानी वापस क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, लो भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। जैसे यहाँ पे फॉलो किया था कि क्लोजिंग भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है और लो भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, उसी तरह से आप देखो इस साइड पे भी यहाँ पे जब एक रेड बनी थी, ये कब था 2 मई को जब रेड बनी थी, इसका क्लोजिंग क्या है 18069। वापस इस कैंडल का फिर ओपनिंग कहां पे 18120 और इसका क्लोजिंग कहां पे 18314। वैसे ही इसका क्लोजिंग वापस प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, वापस जस्ट अ मिनट, हाँ इसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर है और इसका लो भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। यानी अभी अगर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल चाहिए तो आप समझ गए होंगे इस पैटर्न से हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की ओपनिंग जो होनी चाहिए वो इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए। तो क्लोजिंग कहां पे 18203। सो लेट्स से इफ ऑन मंडे वी गेट एनी पॉजिटिव ओपनिंग व्हिच इज अबव 18203, आई एम नॉट सेइंग बिलो 18203, आई एम नॉट सेइंग कहीं नीचे, अगर ओपनिंग 18203 के ऊपर मिलती है और ये जो भी कैंडल है वो वापस कभी 18060 का लो नहीं ब्रेक करती, आपको एसएलबी पता चल गया पॉजिटिव सिनेरियो के लिए क्या है 18060 टूटना नहीं चाहिए ऑन डेज फ्रेम। कोई भी कैंडल 18060, if you are some rough trader or if you are someone who wants to trade aggressively, अगर आपको चाहिए तो फिर आप 18,000 एक राउंड फिगर पकड़ सकते हो। Until and unless a day's candle is not below 18,000, the probability again with the opening, if it is above the closing, that is 18,203, then we have a nice probability of making another good green candle over here, which has a probability of attempting the high of this red. What was the high? 18458 from the above closing. अगर ऐसा हुआ तो the opening is above the closing of the red. This is probability number 1. Now what is probability number 2? On days frame, coming back again to the same scenario of 29th March, on days frame, अगर आप देखो जब से निफ्टी ने अपट्रेंड शुरू किया था एज पर दिस ग्रीन लाइन, जब से निफ्टी ने अपट्रेंड शुरू किया था और अपट्रेंड शुरू करके ये 17,800 का एक टफ रेसिस्टेंस के पास जाने की कोशिश की थी, उसके बाद 5 दिन कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई है 17,842, नॉट एग्जैक्टली कि 800 को टच किया था, बट व्हेन इट ट्राइड अप्रोचिंग 17,800 you may see 5 days profit booking happening on days frame. Similarly, the another tough resistance which was supposed to be happening was at 18,000, right? And when this candle as on 20th April tried approaching 18,000 for the very first time all the way from कब last था 16th Feb, उसके बाद from on the date of 20th April जब इस कैंडल ने 18,000 अप्रोच करने की कोशिश की थी, उसके बाद जैसे यहाँ पे 5 डेज कंसोलिडेशन था, प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, एक प्राइस रिट्रेसमेंट हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 candles went sideways. Of course, this is a very big bullish Baru Mozigu, which is carrying in itself somewhere around 200 points, but still
Once it approached 18,000, you may see this 5 days retracement. यानी 17,800 पे आने के बाद 17,800 को टच करने के बाद 5 डे रिट्रेसमेंट, 18,000 के पास आने के बाद 5 डेज रिट्रेसमेंट, इसके बाद 18,000 के बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कौन सा था आपको पता है, वो था 18,200। 18,200 के पास आने के बाद वापस आप देखोगे 5 डेज रिट्रेसमेंट मिलेगी। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। This structure got repeated thrice on days frame. देखिए, everything is in candlesticks. If you observe it carefully, there are thousands of things that we can notice here. तो वापस एक बार 5 days retracement यहाँ पे आया। उसके बाद 18,200 के बाद, now you know what was the next very strong resistance which is supposed to be considered support only if broken. You may be knowing it is 18,500 जो वापस टच नहीं हुआ था। उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे 17,800 टच नहीं हुआ था और एक 58 पॉइंट से मिस हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, 18,500 जो मिस हुआ है वापस 52 पॉइंट से मिस हुआ है। और उसके बाद रिट्रेसमेंट इसी दिन से काउंट करते हैं क्योंकि 18,458 के बाद क्लोजिंग आप देखोगे 18,398, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स नीचे। तो रिट्रेसमेंट काउंट करोगे 1 2 3 4, नॉट एग्जैक्टली 5 बट 4 डेज वी हैव बीन डाउन। तो शायद वापस अगर अब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, देन देयर इज अगेन अनदर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी फॉर दिस कैंडल टू गो बैक टू दिस लेवल again for the high pumping. This is the second positive scenario. And also on smaller frames too, I had been repeating this. We were following lower low structure since Monday's 2 p.m. we were following lower low structure. On today, as on Friday, we tried breaking this structure and we have again closed about this 18,200. You may see my previous videos where I have mentioned the importance of this 18,200. So as discussed, the positive scenario, positive probability comes agar on Monday we open gap up, and with the gap up opening we make a positive price structure the similar way. What is positive price structures? I have discussed it many a times in the previous videos too. जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि this is the probability of positive price structure, जहाँ पे मैंने कहा था कि शॉर्ट्स बुक करने के लिए पोजीशन अच्छी है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि वापस ये लोज ब्रेक नहीं हुए। लोज ब्रेक हो गए तो आप इमीडिएटली अपने पोजीशन से बाहर निकल सकते हो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग। यहाँ से जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर आया था इसने ये लो को टच नहीं किया। वापस यहाँ पे प्राइस रिट्रेस हुई, वापस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी आपको, जहाँ पे लॉन्ग्स ने अनवाइंड करने की कोशिश की होगी। किसी ने अगर ये लो से अगर देखे जाए, ये लो 18,060 थी एंड हाई इज 18,158, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। यहाँ से जिसने कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा इंट्राडे, वहां से नीचे आए पर लो के पास नहीं गए एंड वी वेंट ऑल द वे टुवर्ड्स 18,200। Similarly, अभी एक अगली long opportunity if we open gap up the way I explained on the weekly candle frames. If we open gap up somewhere around here, we have a probability of going for uptrend. Or uptrend, when I say uptrend, do remember that it happens in this pathway manner. Let me just draw it here, this way, this way, this way, this way. When I say uptrend, so it will happen in this way. जहाँ पे एक certain position पे आने के बाद यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर ले, वापस नीचे क्लोज कर दे, पर प्रीवियस लो ना ब्रेक हो। वापस कुछ लोग यहाँ से लॉन्ग बनाए और वापस यहाँ पे बुक करे, पर प्रीवियस लो ना ब्रेक हो। दिस इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अप ट्रेंड। नाउ सिमिलरली इफ आई वांट टू एक्सप्लेन डाउन ट्रेंड, यू मे नो इट वेरी वेल। लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट। Similarly, downtrend, now I don't need to draw, you may see it from here also, downtrend. Since Monday, how it has happened. Nahi to chalo, I'll just draw it and show you how it happened. See the structure. It went here, pumped up a bit, went here, again pumped up a bit, went here, pumped up, went here, pumped up, went here, pumped up, went here, and then here it closed, again went this way. यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने शॉर्ट्स कवर किए होंगे, जहां से लोगों को लगा था कि यहाँ से निफ्टी वापस मुड़ेगा, बट देन इट कंटिन्यूड द लोअर लोज फ्रेम, it continued the lower lows frame, it continued and it went down. This is a classic example of lower highs and lower lows, just the way previously I explained higher highs and higher lows. So we discussed two probabilities. Once again, the video is very big, and just in order to help you understand different scenarios,
In the similar manner, if the green candle is happening, if the opening is above the closing of previous candle and the new candle doesn't breaks the low of previous candle, we have a very good probability of uptrend where the high of the previous candle 18458 can be broken and we can go for 18500 to 18500 तक हम जा सकते हैं अगर प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो जाए और प्रीवियस कैंडल के लो का लो ब्रेक ना हो तो। और जैसे कि मैंने प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया था जहां पे हायर हाइज और हायर लोज मेंटेन हो और लो ना ब्रेक हो। और अभी ये तो हुई पॉजिटिव सिनेरियो की बात, नेगेटिव सिनेरियो कब होगा तो वंस अगेन लेट्स गो टू दी वीकली कैंडल फ्रेम्स। और वीकली कैंडल फ्रेम्स में हम देखते हैं कि जब भी जो रेड कैंडल है, सेकेंड रेड कैंडल है, एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड के बाद टॉप पे अगर एक नेगेटिव रेड बनती है और फिर जो दूसरी रेड है उसने प्रीवियस रेड का लो ब्रेक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस रेड का लो क्या है 18034, इसका लो ब्रेक किया है ऑलमोस्ट उस कैंडल के साइज से बड़ी दूसरी कैंडल बनाई है। आप देख सकते हो कि इसमें 18034 से लेके 18600 it is covering almost 500 points and you may see this candle it is also covering more than 500 points 17600 18354। वापस आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे जो प्रीवियस रेड कैंडल थी दूसरी रेड कैंडल ने उसका लो तोड़ा तो और नीचे बड़ी कैंडल बन गई। यहाँ पे भी देख सकते हो एक अच्छी खासी रैली आई, रैली आने के बाद एक प्रीवियस कैंडल रेड थी उसका लो जब नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा तो एक अच्छी खासी वैसी रेड कैंडल बनी। यहाँ पे देख सकते हो दिस आई वुड नॉट कॉल अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बिकॉज यू कैन सी हाउ द बॉडीज हैव हैपेंड बट स्टिल व्हेन द लोज वर ब्रोकन फॉर अ लॉन्गर फ्रेम्स ऑफ ट्रेड फॉर अ लॉन्गर फ्रेम लेट्स से मंथली फ्रेम वगैरह द सेलिंग केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग। और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जब एक रैली आए और टॉप पे रेड बने ना कि नीचे साइड पे, ऐसे नीचे साइड पे नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट रैलीज ऑन रैलीज। वैसे ही यहाँ पे आप देखो एक अच्छा खासा ट्रेंड अपवर्ड था पर ये रेड कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे प्रीवियस रेड्स थे, इसलिए यहाँ पे वो टिक नहीं पाया। यहाँ पे भी देखो एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद जब रेड बड़ी बनी और उसका प्रीवियस लो टूटा तो एक नहीं 2 दिन नॉनस्टॉप कंटिन्यूअस सेलिंग थी। यहाँ पे भी एक अच्छी खासी अप ट्रेंड आई, रेड कैंडल बनी और उसका लो जब नए कैंडल ने तोड़ा सो यू मे सी व्हाट अ बिग सेलिंग हैज हैपेंड कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेकिंग प्रीवियस डेज हाई। सिमिलरली अब अपने केस में इस केस में अगर 18060 ये लो टूटता है, ठीक है 18060 टूटता है वीकली कैंडल के बाद और डेज कैंडल में मंडे को 18060 के नीचे सस्टेन करता है, वी हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग अगेंस्ट 17903 फर्स्ट एंड देन 17860 सेकंड। ओके लेट मी रिपीट दिस, इफ वी ब्रेक 18060 ऑन डेज कैंडल फ्रेम यानी क्या, ऐसा नहीं कि सुबह 10 या 11-12 के बीच में यहाँ पे आ जाए और वापस रिट्रेस करके 1800-200 के ऊपर क्लोज हो जाए, नहीं, आई एम टॉकिंग वीकली प्रोबेबिलिटी। सो 3-3 के बाद अगर डेज कैंडल 18060 के नीचे ही क्लोजिंग देने के लिए तैयार है इतना बड़ा अपमूव देने के बाद भी, देन वी हैव अ गुड प्रोबेबिलिटी अगेन अगर वहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन रहे फॉर 17903 एज फर्स्ट टारगेट एंड 17850, उसके नीचे भी जाने की प्रोबेबिलिटीज वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस ऑन डेज एनालिसिस। बट दैट इज द नेगेटिव सिनेरियो, 2 नेगेटिव सिनेरियोज। वापस ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन हाउ। अगर वहां पे वापस यहाँ पे आने के बाद जैसे हमको लग रहा था कि 18200 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, 18200 टूटने के पहले ये प्रीवियस फ्रेम्स में 18200 टूटने के पहले हमको लग रहा था कि 18200 अच्छा सपोर्ट हो सकता है। यू मे सी अ ग्रीन कैंडल कमिंग हियर बट अगेन ये ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस हाई तोड़ा क्या, नहीं, प्रीवियस हाई तोड़ने की जगह लो ही तोड़ा और लोअर लोज का स्ट्रक्चर मेंटेन किया, कभी भी एक प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा। एंड देन यू मे सी इट गेव अ वेरी नाइस प्रॉफिट पॉइंट्स फॉर सेलर्स somewhere close to 1815 as good as 85 points जो कि अच्छा प्रॉफिट था। Similarly negative scenario from Monday happens only if 18060 is broken from a day's candle after 3 or 3:15 PM also and then it can go more further down। अगर जल्दी टूट के भी लोअर लोज फ्रेम में मेंटेन करे, चलो 10-11 वगैरह के टाइम पे भी लोअर लोज के फ्रेम में ऐसे ही मेंटेन करे द वे इट मेंटेन हियर व्हाइल ब्रेकिंग 18200 नॉट इवन वंस। दूसरी बार भी आप अगर देखोगे 18200 दूसरी बार जब ब्रेक किया था उसने वापस लोअर हाइट्स को अप्रोच नहीं किया और नीचे चला गया। वैसे ही अगर दूसरी बार भी अप्रोच करे देन वी अगेन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्टिंग। दिस वे वी हैव डिस्कस्ड two probabilities for bullish scenario as well as bearish scenario. So that's it for weekly video. Again remember that
options trading specifically is a game of high probabilities where we have to be 6 out of 10 times right as a retailers. Why? Because if you see FIIs, वो भी कभी ना कभी एक बार loss लेते ही है boss, है ना? You cannot say FIIs have 100% probabilities of being right, isn't it? Similarly, you can call about DIIs, या फिर you can say HNIs. Everyone faces losses. So similarly, retailers can also see losses, but what I mean is to have 6 out of 10 ka ratio where at least 4 times we have less losses and 6 times we have good profits, with having a proper SL, with having proper entry and having proper exit, following the structures and price action. On that note, I am signing off for the day. See you in next video. Thank you so much for watching.